یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر ہیں. پہلے ہیڈ لائنز. صدر جمہوریہ کے ہاتھوں سابق وزرائے اعظم پی وی نرسمہا راؤ اور چودھری چرن سنگھ سمیت کئی دیگر اہم شخصیات اعلیٰ ترین شہری اعزاز بھارت رتن سے سرفراز. محکمہ خزانہ کی طرف سے 2024-25 کے عبوری بجٹ میں سے کیپیکس بجٹ کے تحت 50% رقم کو استعمال میں لانے کی منظوری. سویپ کے تحت چناو سے جڑی سرگرمیاں مختلف ضلعوں میں لگاتار جاری. پہلی بار کے ووٹروں کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا بے صبری سے انتظار. اور اوڑی بارامولہ میں بدنامی زمانہ منشیات سمگلر کا 2 منزلہ مکان سربے مہر. خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج راشٹرپتی بھون میں منعقدہ ایک تقریب میں سابق وزرائے اعظم پی وی نرسمہا راؤ اور چودھری چرن سنگھ، زرعی سائنسدان ایم ایس سوامیناتھن اور 2 مرتبہ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ کرپوری ٹھاکر کو بعد از مرگ ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز بھارت رتن عطا کیا. صدر جمہوریہ کل نئی دلی میں سابق نائب وزیر اعظم اور بی جے پی لیڈر ایل کے اڈوانی کو ملک کا اعلیٰ ترین شہری اعزاز پیش کریں گی. تقریب کے دوران ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے رشتہ داروں نے ایوارڈ حاصل کیے. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ، وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، کانگریس صدر ملک ارجن کھرگے، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور دیگر معززین تقریب میں موجود تھے. بھارت رتن ملک کا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے. یہ انسانی کوششوں کے کسی بھی شعبے میں غیر معمولی خدمات اور اعلیٰ ترین کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے. محکمہ خزانہ نے 2024-25 کے عبوری بجٹ میں سے کیپیکس بجٹ کے تحت 50% رقوم کو سبھی محکموں اور ضلع ترقیاتی کمشنروں کی طرف سے استعمال میں لانے کی منظوری دی ہے. البتہ اس سلسلے میں رقومات کی واگزاری متعلقہ اتھارٹی کی طرف سے منظور شدہ کاموں اور منصوبوں کو بیمز پورٹل پر اپلوڈ کیے جانے سے مشروط ہے. ضلع ترقیاتی کمشنروں سے کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ اتھارٹی سے اپروول ملنے کے بعد ضلع منصوبوں کو 30 اپریل تک سونپ دیں. سبھی اضلاع کو ورک پلان بیمز پورٹل پر مقررہ وقت کے اندر اپلوڈ کرنا ہوں گے. اس سلسلے میں سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ 2024-25 کے بجٹ اخراجات کو تصرف میں لانے کے لیے سالانہ منصوبے مرتب کرتے وقت انتظامی کونسل، لیفٹیننٹ گورنر، چیف سیکرٹریوں کی 3 کانفرنسوں، بیک ٹو ولیج پروگراموں، پبلک درباروں اور عوامی شکایتوں کے ازالے کی میٹنگوں کے دوران دی گئی ہدایات کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے اور ترقیاتی پلان اسی کے مطابق مرتب کیے جانے چاہیے. ضلع الیکشن آفیسر کپواڑہ آیوشی سدھن کی ہدایت پر سویپ پہل کے تحت آج ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں میں چناؤ سے متعلق سرگرمیوں اور شہریوں میں انتخابی خواندگی کو فروغ دینے، خاص طور پر آنے والے لوک سبھا انتخابات سے پہلی بار ووٹ دینے والوں کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے میگا ووٹرز بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ووٹرز کی تربیت اور انتخابی شرکت سویپ پہل کے تحت میگا ووٹرز بیداری پروگراموں کا انعقاد نوڈل افسر سویپ سی ای او کپواڑہ نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول وارسن ترہگام اور رنگ پائن مسل میں کیا. تقریبات میں مختلف اسکولوں کے پرنسپلز، اساتذہ اور طلبہ، مختلف محکموں کے افسران، عوام، پہلی بار کے رائے دہندگان، کمیونٹی لیڈرز، مقامی فنکاروں اور دیگر ٹارگٹ گروپس نے شرکت کی. ووٹنگ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مقامی فنکاروں کی طرف سے پیش کی گئی شاندار ثقافتی پرفارمنس نے شرکاء کو محظوظ کیا. آئندہ لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہندواڑہ عزیز احمد راتھر نے آج ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں تحصیل ہندواڑہ کے تمام پولنگ اسٹیشنوں کے نگرانوں اور بی ایل اوز کے لیے منعقدہ ایک تربیتی پروگرام کی قیادت کی. یہ تربیت ضلع سطح کے ماسٹر ٹرینر سید ثاقب گیلانی نے دی، جنہوں نے انتخابی عمل کے مختلف پہلوؤں اور ای وی ایمز اور وی وی پیٹس کو چلانے کے بارے میں شرکاء کی مکمل رہنمائی کی. اس موقع پر انتخابات میں سرگرم شرکت کی اہمیت اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بیان کردہ رہنما خطوط پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا گیا تاکہ انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے. تربیت یافتہ افراد سے خطاب کرتے ہوئے اے ڈی سی نے متعلقہ افراد پر زور دیا کہ وہ ہر ایک پولنگ اسٹیشن پر کم سے کم یقینی سہولیات کو یقینی بنائیں. اسی
इसी सिलसिले में जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने आज जिला कुलगाम में बुजुर्ग शहरियों और ख्वातीन के लिए स्वीप के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। बुजुर्ग ख्वातीन और मर्द वोटर्स को रागिब करने और उन्हें वोट की अहमियत से आगाह करने के लिए बंड पत्थर का इनेकाद किया गया, जिन्होंने उन्हें अपनी सलाहियतों के साथ वोटर्स के बारे में मुफीद मशवरे देने के अलावा वोट की ताकत से मुतल्लिक भरपूर मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम का मकसद मुअम्मर अफराद के साथ इंतखाबी अमल में मसावी शिरकत को यकीनी बनाने की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। स्वीप के लिए नोडल ऑफिसर एसीपी कुलगाम नाजिया हसन ने बताया कि नौजवानों, ख्वातीन, बुजुर्ग वोटरों और कबाइलों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की सरगर्मियां पोलिंग के दिन तक रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा शिरकत को यकीनी बनाया जा सके और वोटर्स को जमहूरी अमल को मजबूत बनाने के लिए सहूलत और हौसला अफजाई हो सके। मुल्क में लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जम्मू कश्मीर में जहां जम्मू पार्लिमानी नशस्त के लिए उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी है, वहीं कश्मीर वादी में मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से राय दहिंदगान को अपनी जानिब माइल करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस सिलसिले में अहम सियासी जमातों की तरफ से कहीं जलसे तो कहीं अवामी मीटिंगों का एहतमाम किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज पार्टी लीडरों, अहदेदारों और कारकुनों का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो चुनावी सरगर्मियों में जी जान से काम करें। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात में सब लोग अपना वोट देकर तकसीमी अनासर को मुस्तरद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को अपनी कीमती वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अहल राय दहिंदगान में से एक अच्छी खासी तादाद पहली बार के वोटरों की है। चुनाव कमीशन के मुताबिक यूटी में पहली बार वोट देने के अहल राय दहिंदगान की तादाद 3,40,000 के आसपास है, जो कि अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के लिए पुरजोश हैं। हमारे बांडीपोरा के नुमाइंदे आदिल इस्माइल से बात करते हुए जिले में पहली बार वोट देने के अहल चंद नौजवानों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं बांडीपोरा की रहने वाली। मेरी उम्र 18 साल से ज्यादा है और मेरा नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं पहली बार इस जमहूरी हक का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। वोट ताकत रखता है और मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहती हूँ। साकिब अली है, मैं गाजीपुरा बांडीपोरा में रहता हूँ। मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है। मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे पहली बार अपना वोट आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कास्ट करना है। अपने वोट की बदौलत हम अपना मन पसंदीदा नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। हमारे वोट हमारी ताकत है। हमारे वोट से मुल्क की जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होती है। आमिना है, मैं अमश्री बांडीपोरा से हूँ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में आया है। मैं पहली बार अपना वोट आने वाले लोकसभा इलेक्शन में कास्ट करूंगी। मुझे मालूम है कि मेरे वोट की कीमत क्या है। मेरा वोट मेरी ताकत है। हमारे वोट कास्ट करने से डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होती है। Assalamualaikum. My name is Anzar Mughal and I am from Bandipora, Kashmir. I am 18 years old and I recently got my voter ID. I am very happy to cast my vote for the upcoming elections. दरियासना मरकजी चुनाव कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 पार्लिमानी हलकों में मरकजी चुनाव मुबस्सरीन तैनात करने का फैसला लिया है, जबकि जम्मू कश्मीर की इलेक्शन अथॉरिटी तमाम पोलिंग मराकज के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात करेगी। इन मुबस्सरीन में से एक जनरल ऑब्जर्वर होगा और दूसरा अखराजाती ऑब्जर्वर के तौर पर अपने फराइज अंजाम देगा। हर हल्के में 2 मरकजी मुबस्सरीन तैनात होंगे और वो मुतय्यन किए गए पार्लिमानी हलकों का दौरा करने के अलावा इंतखाबात का दाना, मुनसिफाना और शिफाफ तरीके से इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। इसी तरह जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोकसभा की 5 सीटों के तमाम 11,629 पोलिंग स्टेशनों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात करेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वोटिंग के दिन पोलिंग आसानी से अमल में लाई जा सके। बाद में 4 जून को गिनती के दिन वोट शुमारी के तमाम मराकज पर भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात रहेंगे। बारामूला पुलिस ने जिले में एक बदनामी जमाना मनशियात स्मगलर के एक मकान को कुर्क किया है।
दरअसल मनशियात के स्मगलरों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखते हुए पुलिस ने जिले के दर्दकोट ऊडी इलाके में रहने वाले आजाद अहमद मीर वल्द अब्दुल अजीज नाम के एक सरगर्म स्मगलर के 2 मंजिला मकान को सरबे मुहर कर दिया है, जिसकी मालियत 30 लाख रुपए के आसपास है। मज़कूरा शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन ऊडी में पहले ही एक मामला दर्ज था। पुलिस ने कहा है कि छानबीन के दौरान ये बात साफ हो चुकी थी कि मज़कूरा शख्स ने यह असासा मनशियात और इस तरह की दीगर मसनूआत का गैर कानूनी कारोबार करके हासिल किया था। मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। मरकजी वजीर और नागपुर हलके से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने आज वस्ती नागपुर में एक जबरदस्त रोड शो किया। बीजेपी के हामियों की बड़ी तादाद उनकी हिमायत का इजहार करने के लिए जमा हुई थी। गडकरी नागपुर से ऐवान ज़ेरी में तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाब के ख्वाह हैं, जहां महाराष्ट्र में 5 मरहलों में होने वाले इंतखाबात में लोकसभा इंतखाबात 19 अप्रैल को होंगे। नागपुर से 2 बार बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रहने वाले गडकरी के मद्देमुकाबिल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विकास ठाकुर होंगे, जो इस वक्त मगरबी नागपुर के एमएलए और नागपुर के जिला कांग्रेस सदर हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज इनकलाबी आजादी पसंद श्यामजी कृष्णा वर्मा को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि वो भारत की आजादी की तहरीक के एक कदावर लीडर थे, जिनके नाकाबिल तस्खीर जज्बे और आजादी के मकसद के लिए अज़्म को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि श्याम जी के इंडिया हाउस के क़याम ने बैरून मुल्क आजादी की जद्दोजहद के लिए एक मरकज का काम किया। मुल्क की आजादी के लिए उनकी खिदमात को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने इन नजरियात को बरकरार रखने का अहद कर लिया है जिनके लिए उन्होंने जद्दोजहद की। 1857 में गुजरात में पैदा हुए वर्मा ने हिंदुस्तानी कौम परस्ती और आजादी के मकसद को फरोग देने के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस और द इंडियन सोशोलॉजिस्ट की बुनियाद रखी। गुजरात के वज़ीर-ए-आला के तौर पर मोदी 2003 में स्विट्जरलैंड से वर्मा की राख वापस लाए थे, जहां उनका इंतकाल 1930 में हुआ था। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।